Hello students, welcome to the fifth lecture of hydrogen chapter. In this lecture, we are going to talk about the next type of hydrate, that is covalent molecular hydrates, and last one is metallic or interstitial hydrate. Now let us study what is the meaning of covalent or molecular hydrates. These hydrates are basically formed by p block elements. p block elements means group number 13 to 18. अभी 18 वाला तो hydrates बनाएगा नहीं because they are noble gases. So basically group number starting from 13 to group number 17. Right now, that's why they are called as molecular hydrates, because these hydrates are basically molecules. ये basically किस फॉर्मेट में होते हैं? फॉर्म में होते हैं molecules के फॉर्म में, and hence are also called as molecular hydrates. They are also called as molecular hydrate. Now say for example, if I talk about group number 13, they forms BH3. Group number 14, it is CH4, this is NH3. Now if I talk about NOCP chapter, आपने वहाँ पे पढ़ा है BH3 has triangular planar structure, this has tetrahedral structure, and this is pyramidal in shape, right? तो स्टूडेंट सबका कुछ ना कुछ शेप है, इस वजह से बेटा, and they are in the form of molecules, इसलिए they are also called as what? Molecular hydrates, right? Now if I talk about molecular hydrates, they are non-conductor of electricity because they cannot produce what? Ions. अगर हम लोग बात करें प्रीवियस वाले की, तो अगर हम लोग बात करें NaH की, तो मोल्टन स्टेट में इट विल फॉर्म Na plus and H minus, so it can conduct electricity but in molten state, not in solid state. बट यहाँ पे ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इफ आई टॉक अबाउट molecular or covalent hydrates, they are further classified into three types. There are three types. First one is electron deficient hydrates. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट लुईस एसिड्स होते हैं. दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट्स. These are neither Lewis acid nor Lewis base. क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा. And they are electron rich hydrates. So if I talk about the first type of hydrates, that is A, electron deficient hydrates. Electron deficient hydrates. Electron deficient hydrates are basically formed by group 13 elements. ग्रुप 13 एलिमेंट्स. इनके आउटरमोस्ट शेल में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3. जैसे कि अगर हम लोग बात करें बोरॉन की, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो हाइड्रेट का फॉर्मूला होगा इट विल बी BH3, राइट. अगर मैं BH3 की बात करूं, तो इस BH3 में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. तो अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ कि रिच हुआ? Yes, it is electron deficient. And electron deficients are what? Lewis acid or Lewis base? They are Lewis acids. ठीक है. So ये लोग बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, and therefore they are known as what? Electron deficient hydrates. ठीक है. So group number 13 hydrates are electron deficient. We can take one more example of AlH3, right? And आप लोगों ने NOCP चैप्टर में पढ़ा है BH3 जो है इट कैन एग्जिस्ट इन डायमरिक फॉर्म एज डाइबोरेन B2H6 बॉन्ड, राइट. इसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेकंड वन, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट. नाउ व्हाट इज द प्रिसाइज? मतलब ना तो ऑक्टेट एक्सपांडेड फॉर्म में है, ना ही इनकम्प्लीट फॉर्म में. जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना है, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. सो दीज आर फॉर्म बाय ग्रुप 14 एलिमेंट्स. So electron precise hydrates are formed by group number 14 element. If I talk about group number 14 element, say for example carbon. कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स? इट इज 4. सो ये बनाएगा पूरा फॉर्मूला आपका CH4. और अगर CH4 की बात करें तो इसका ऑक्टेट क्या है? यस, इट इज कंप्लीट. और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सो दिस इज नाइदर लुईस एसिड, इट इज नाइदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस. ये ना तो लुईस एसिड है, ना ही लुईस बेस है. सो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स विल नॉट फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स. दे विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब जितना चाहिए उतना ही. ठीक है. नाउ लास्ट इन फाइनल इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स. मतलब इनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सो देयरफॉर दे आर लुईस बेसेस. ठीक है. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स आर बेसिकली फॉर्म बाय ग्रुप नंबर 15, 16 and 17. 18 तो हाइड्रेट बनाता ही नहीं है because they are noble gases. If I talk about group number 15, so it is NH3,
PH3. If I talk about group number 16, it is H2O, H2S. If I talk about group number 17, it is HF, HCl, HBr, HI. यहाँ पे बच्चों एक ही लोन पेयर होता है, इनके पास एक लोन पेयर होता है, करेक्ट। इनके पास में दो लोन पेयर होते हैं, they have two लोन पेयर्स, एंड यहाँ पे they have three लोन पेयर्स, ठीक है। तो इनके पास में लोन पेयर है, इनका बच्चों ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, एक्सपांडेड नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट लोन पेयर के साथ में कंप्लीट है, राइट। सो दे आर बेसिकली लुईस, यस दे आर लुईस बेस, ठीक है। और 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था, PH3 वाज द आंसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लुईस बेस। इसमें से ग्रुप नंबर 14 में से एक था, ग्रुप 13 के 2 ऑप्शन थे और एक ग्रुप 15 का, तो डेफिनेटली ग्रुप 15 होगा क्योंकि फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर होगा। सो बेसिकली covalent of molecular hydrates are formed by p block elements, and p block में भी group numbers 13 to 18, not 13 to 17, sorry, not 18 because 18 is a noble gas. इनका molecules के form में structure होता है, इसके लिए they are also known as molecular hydrates. They are non-conductor of electricity because they cannot produce ions. There are 3 types: electron deficient, precise and rich. Group number 13, group number 14, 15, 16, 17. So this is Lewis acid, neither Lewis acid nor Lewis base, and this is Lewis base, right? Now, if I talk about the third and the final type of hydrates, they are metallic, or they are also known as interstitial or non-stoichiometric hydrates. Interstitial or non-stoichiometric hydrates. Now, if I talk about these kind of hydrates, these are formed by D and F block elements. So, first point, these are formed by D and F block elements. Now, ये हाइड्रेट्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है? सबसे पहली बात तो ये D ब्लॉक एलिमेंट जनरली सब क्या है बेटा, मेटल्स हैं, F ब्लॉक की सब मेटल्स ही हैं। तो जब लोग अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, दे आर जनरली इन आइदर CCP, सॉलिड स्टेट में सीखा है मैंने, और HCP फॉर्म में होते हैं। तो जनरली D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स दे हैव आइदर CCP और HCP फॉर्म, राइट। अभी HCP और CC फॉर्म में इनके बीच में जब एटम्स अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, वॉइड स्पेस होता है। कौन सा स्पेस होता है स्टूडेंट्स? वॉइड स्पेस होता है, और इसी को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, राइट। दिस स्पेस इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब आके एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये समझो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एडजस्ट हो गया इस वाइड स्पेस में। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आया तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है? यस, वाइड स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स और मेटालिक हाइड्रेट्स। ना इनको मेटालिक हाइड्रेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इंटरस्टिशियल हाइड्रेट की प्रॉपर्टीज होती है, जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, दे आर सिमिलर टू मेटल, पेरेंट मेटल जो होगा उसी से सिमिलर होती है, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज मेटालिक हाइड्रेट्स। Therefore they are known as metallic hydrates, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मेटालिक हाइड्रेट्स की, तो इनका बेटा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, दैट मीन्स दे आर नॉन स्टोइचोमेट्रिक इन नेचर। नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल देखें जर्कोनियम का, जर्कोनियम हाइड्राइड X, अभी ये X का जो वैल्यू है अगर आप एक्सपेरिमेंट में चेक करो तो इट इज 1.3 से 1.75 तक आता है, मतलब एनी नंबर इंक्लूडिंग दिस टू ऑल्सो। तो इसका मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ जर्कोनियम H 1.5 ही हो सकता है। तो अभी मुझे था यहाँ पे जो रेशियो है वो परफेक्ट नहीं है, सो देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड्स। सो ग्रुप दैट इज D and F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे फॉर्म मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स एंड दे आर नॉन स्टोइचोमेट्रिक इन नेचर, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्रेट। हाँ, अगर इनके बेटा अगर हम लोग बात करें, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ग्रुप नंबर 7 है, 8 है और 9 है, इनके जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9, दे हैव लेस एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन एंड देयरफॉर दे विल नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। ये लोग कभी भी हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। सो नो हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9। नो हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड। अगर ये लोग हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो दिस गैप, दिस इज द गैप इन द D block elements, therefore it is also known as a hydride gap. So this is a very important question. गैप कहाँ पे कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं? 7, 8 एंड 9. So this is all about metallic और
interstitial, which is also known as non-stoichiometric hydrate. Now students, basically in this lecture number 5 we have studied about covalent or molecular hydrates and metallic and interstitial hydrates. So अगर आप लेक्चर नंबर 4 और 5 को कंबाइन करते हो तो ये पूरा आपका कंसेप्ट बन जाता है हाइड्रेट्स के बारे में। अगर मैं आपको 2 मिनट ब्रीफ में बताऊं तो हाइड्रेट्स जो होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। वन इज आयनिक हाइड्रेट व्हिच आर आल्सो नोन एज, यस, आयनिक हाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सलाइन और, यस बोलो, सॉल्ट लाइक हाइड्रेट्स। दूसरा कौन सा था? आज हम लोग ने पढ़ा कोवैलेंट और मेटालिक हाइड्रेट, मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स, एंड थर्ड वन इज मेटालिक और इंटरस्टिशियल और दे आर आल्सो नोन एज नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्रेट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हार्डनेस ऑफ वाटर, जो 2019 में आपके नीट में भी आया था, उसके ऊपर क्वेश्चन क्लार्क्स प्रोसेस के ऊपर। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हार्डनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।